بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینے والے گوشت کا حکم اور عتیرہ کا حکم۔ تو پہلے ہم یہ باب پڑھیں گے، بابو ما جاء فی اکل اللحم لا یدرا اذکر رسم اللہ علیہ ام لا، یعنی کہ اس گوشت کا بیان جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد تحويل وحدثنا القعنبي عن مالك تحويل وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاذر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما حديث أحد الجاهلية يأتون بلهمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا فنأكل منها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکلوا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جو احکام شریعت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم وہ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ تو دیکھیے یہاں پر ذکر کیا گیا لم یذکر عن حماد و مالک عن عائشہ تھا، تو یہاں پر لفظ عن عائشہ اس کی ترکیب میں لم یذکر، یہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے استاد موسیٰ نے حماد سے اور کعنبی نے اپنے استاد مالک سے اس سند میں لفظ عن عائشہ ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف تیسرے استاد یعنی یوسف بن موسیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے پہلے دو استادوں کی روایت مرسل ہے اور تیسرے استاد کی روایت جو ہے وہ موصول ہے۔ اسی طرح پھر آگے ذکر کیا گیا سم اللہ وکلوا، یعنی جو کھانے کا مسنون طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، یعنی ان نو مسلموں کے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرتے ہوئے کھا لینا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ تسمیہ عند الاکلی یا تسمیہ عند الذبح کے یہ قائم مقام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا۔ پھر آگے ہم ائمہ کے کچھ دلائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ شکار ہو یا ذبیحہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح بعض مالکیہ کا مذہب یہی ہے کہ اگر عمدن یا سہون بسم اللہ چھوڑ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک حالت عمد میں تسمیہ پڑھنا شرط ہے اور حالت نسیان میں معاف ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل یہاں پر یہ ہیں، وہ اپنی دلیل قرآن کی آیت سے لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو یہاں پر پھر آگے وہ فرماتے ہیں الا ما زکیتم، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جانور کے گوشت کھانے کی حلت کی جو شرط بیان کی گئی ہے وہ شرط ہے الا ما زکیتم، مگر جو ذبح کیا گیا ہو۔ پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی لوگ اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو کھاؤ، یعنی کہ تم خود اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لو۔ تو دیکھیں
फिर यहाँ पर आगे ये जिक्र कर दिया गया जो कि हदीस में जिक्र किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर खा लो। अब यहाँ पर जमहूर की दलील देखिए, वो फरमाते हैं वला ताकुलू मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। तो देखिए ये आयत जो है ये इसकी सरी दलील है कि जो जानवर अल्लाह के नाम के बगैर ज़िबा किया जाए इसका खाना जायज नहीं होगा। अब हम इमाम शाफी रहमहुल्लाह की दलील का जवाब देखते हैं कि क्या जवाब है। तो आयत कुरानी में जहाँ पर ज़कात का जिक्र किया गया तो ज़कात से मुराद ज़कात शरई है, यानी ज़िबा अल्लाह के नाम के साथ है, क्योंकि ज़कात के लुग़वी माना मुराद नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इसके लुग़वी माना होते हैं फाड़ना, और जाहिर सी बात है फाड़ना तो यहाँ मुराद नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसकी तायद दूसरी आयत से भी होती है जो ये है कि ला ताकुलू मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि। तो यहाँ पर दोनों आयतों में बज़ाहिर तारुज़ होगा, इसलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह की मुस्तदल जो हदीस है उसमें पहले तो हुस्न ज़न के बारे में है कि कोई ज़बीहा तुम्हारे सामने पेश किया जाए इस दावे के साथ कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया है तो हुस्न ज़न के तौर पर अल्लाह का नाम लेकर खाओ। और तीसरी जो बात जिक्र की गई वो ये है नसियान के बारे में, तो इसलिए इससे इस पर इस्तिदलाल सही नहीं है, क्योंकि वहां पर ये शर्त है कि हालत नसियान में जो है वो मुआफ है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस्तिदलाल करना बेहतर नहीं है, सही नहीं है। अब हम अगले बाब को देखते हैं। अगला बाब है बाबू फिल अतीरा, यानी अतीरा रजब की कुर्बानी का बयान। अब अतीरा उस कुर्बानी का नाम है जो कि इब्तिदा इस्लाम में रजब के पहले आशरे में की जाती थी। अब यहाँ पर इमाम अबू दाऊद ने यहाँ सिर्फ एक ही बाब अतीरा पर कायम किया है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अतीरा और फरा दोनों पर अलग अलग बाब कायम किए हैं, और दोनों में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ला फरआ वला अतीरा ये जिक्र फरमाई है। तो रिवायात दोनों ही के बारे में ये है कि ये मुख्तलिफ हैं, इसलिए किताबु ज़हाया के शुरू में जो हदीस गुजरी है जो हमने पढ़ी है उसमें अतीरा का जवाज जिक्र किया गया है, और यहाँ पर जो आज हम हदीस पढ़ेंगे इसमें नफी जिक्र की गई है। फरा के बारे में इस बाब की पहली हदीस में इस बात का इस बात है कि फी कुल्ली साइमतिन फराउन, और बाब की दूसरी हदीस में इसकी नफी जिक्र की गई है और फरमाया ला फरा वला अतीरा। तो जमहूर उलमाए किराम और आइम्मा सलासा के नजदीक अतीरा और फरा दोनों ही मंसूख हैं, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह और बाज दूसरे उलमाए किराम के नजदीक ये दोनों अब भी मुस्तहब हैं। इमाम शाफी ने नफी और इस बात की रिवायात में रफा व तारुज इस तरह फरमाया है कि नफी को महमूल किया है नफी वजूब पर, और इस बात की रिवायात को उन्होंने महमूल किया है इस्तिहबाब पर, यानी मुस्तहब होने पर। और जमहूर का अमल तो हदीस सहीहैन के मुताबिक है, यानी ला फरआ वला अतीरा पर है। इसी तरह इब्न मुंजर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि फरा और अतीरा का जमाना जो है वो जमाना जाहिलियत में रवाज था। बाज लोग इस्लाम लाने के बाद भी करते रहे, मगर पहले जो हुक्म था फिर उसकी मुमानियत हो गई। अब मुमानियत जो है वो हुक्म के बाद थी, तो ये नस्ख है। अब फिर किसी ने इसके खिलाफ नकल भी नहीं जिक्र किया। पहले हुर्मत थी और फिर इजाजत आई, इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि नस्ख का सबूत नहीं मिला। फिर फरा की तफसीर में मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए गए हैं, और ये कहा गया है कि किसी जानवर का पहला बच्चा जिसको मुशरिकीन बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे खैर बरकत के लिए, और इब्तदा इस्लाम में इसको अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता था, इसको फरा कहा जाता है। और दूसरा फर्क ये जिक्र किया गया कि मुशरिकीन तो इसको पैदाइश के बाद शुरू ही में ज़िबा करते थे, और इब्तदा इस्लाम में इसको बड़ा होने के बाद ज़िबा किया जाता था। और फिर आगे फरमाया कि पूरे रेवड़ में जो भी जानवर पहले ब्याए इसका बच्चा वो नफी नफसी ही इसका पहला बच्चा हो या ना हो उसको फरा कहा जाएगा। इसी तरह आदमी के कब्जे में बकरी या ऊंट में से 100 का अदद पूरा होने के बाद जो बच्चा भी पैदा हो इसको फरा कहा जाता है। इसी तरह एक और कौल ये जिक्र किया गया है कि हर 50 बकरियों में से एक बकरी, जैसा कि हदीस में भी जिक्र किया गया है,
मिन कुल्ली खमसीना शातन शातु, क्या हर 50 बकरियों में से एक बकरी वो फरा कहलाएगी। तो यहाँ पर ये इनके अकवाल थे जो इसके बारे में जिक्र किए गए हैं। अब हम हदीस को देखते हैं। वबिही क़ाल हद्दसना मुसद्ददुन तहवील व हद्दसना नस्र इब्न अली अन बिश्र इब्न मुफव्वल मअना क़ाल हद्दसना खालिद अल-हज़्ज़ाउ अन अबी किलाबता अन मलीही क़ाल क़ाल मुशैबतु नादा रजुलुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना नअतिरु अतीरतन फिल जाहिलियति फी रजबिन फमा तअमुरुना क़ाल अज़बहु लिल्लाहि फी अय्यि शअरिन काना वबर्रुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअतइमु क़ाल इन्ना कुन्ना नुफ़रिउ फ़रअन फिल जाहिलियति फमा तअमुरुना क़ाल फी कुल्ली साइमतिन फ़रअन तख़ुज़ूहु माशियतक हत्ता इज़ा इस्तहमला क़ाल नस्रु इस्तहमला लिलहजीजी ज़बहतहु फतसद्दक़त बिलहमिही क़ाल खालिदुन अहसबहु क़ाल अला इब्नि सबीली फ़इन्न ज़ालिका ख़ैरुन क़ाल खालिदुन क़ुल्तु लि अबी किलाबता कम साइमतु क़ाल मिअतुन। तो देखिए यहाँ पर अबू किलाबा अबू मली से और वो हजरत नुबैशा से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा कि हम लोग ज़माने जाहिलियत में रजब के महीने में अतीरा किया करते थे, अब आप इसके बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं? आपने फरमाया अब रजब की कोई तखसीस नहीं है, जिस महीने में चाहो अल्लाह के लिए ज़िबा करो, अल्लाह की अताअत करो और मसाकीन को खिलाओ पिलाओ। इस शख्स ने दूसरा सवाल किया कि हम ज़माने जाहिलियत में फरा किया करते थे, अब आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? आपने फरमाया तमाम चौपाओं में एक फरा होता है, इसको ग़िज़ा दे तेरा मवेशी यहाँ तक के वो बोझ उठाने के काबिल हो जाए। और नसर की रिवायत में यूं है कि सफर हज के काबिल ऊंट बन जाए तो तू इसको ज़िबा कर और इसका गोश्त सदका कर। खालिद कहते हैं मेरा गुमान है कि अबू किलाबा ने कहा मुसाफिरों पर इसका गोश्त सदका कर क्योंकि ये तेरे हक में बेहतर है। खालिद ने कहा मैंने अबू किलाबा से पूछा कि कितने चौपाइयों में फरा होता है? उन्होंने कहा 100 में। तो देखिए यहाँ पर फरमाया फी कुल्ली साइमतिन फराउन, तो ये फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में इस बच्चे को पहले ही दिन ज़िबा कर दिया जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमा रहे हैं कि फरा तो बरहक है, लेकिन पहले ही दिन ज़िबा करने की बात गलत है, बल्कि तुमको चाहिए कि जब वो तुम्हारा अपना ही जानवर है तो इसको पालो, परवरिश करो, जब वो बड़ा हो जाए, सवारी के काबिल हो जाए, तब इसको ज़िबा करो। इसी तरह की हिदायत आगे भी जिक्र की गई है कि अन तत्रुकू हत्ता यकूना बकरन, यहाँ तक के वो जवान हो जाए, फिर तुम इसको किसी मिस्कीन औरत को अता कर दो या जिहाद में इसको इस्तेमाल करो तो ये बेहतर है इस बात से कि तू पैदा होने के फौरन बाद ज़िबा करो और इसका गोश्त, इसकी खाल और ऊन ही इसको लगा रह जाए। क्योंकि देखिए जब शुरू में ही इसको ज़िबा कर दिया जाता है तो उसका गोश्त जो है वो खाल के साथ ही लगा हुआ रह जाता है और गोश्त से फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए फरमाया कि तू अपने दूध के बर्तन को ऊंधा कर, यानी कि अगर तुमने ऐसा तरीका अपनाया कि शुरू में ही उसको ज़िबा कर दिया तो गोया तुमने ऐसा किया कि अपने दूध के बर्तन को ऊंधा कर लिया। यानी जब ऊंटनी के बच्चे को बचपन में ही ज़िबा कर दिया जाए तो फिर ऊंटनी बगैर अपने बच्चे के दूध कैसे देगी, तो इसलिए ऐसा करने से मना फरमाया। अगली हदीस देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अब्दता क़ाल अख़बरना सुफ़यान अन ज़ुहरी अन सईद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला फ़रअ वला अतीरा, यानी कि यहाँ पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में ना अतीरा है और ना फ़रअ। अब अगली हदीस देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अल-हसन इब्न अली क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मअमर अन ज़ुहरी अन सईद क़ाल अल-फ़रअ अव्वलुन नताजी काना युंतजु लहुम फयज़बहूनहु। तो देखिए यहाँ पर हजरत सईद बिन मुसय्यब ने कहा कि फरा इस बच्चे को कहते हैं जो पहले पैदा होता है, यानी जब वो बड़ा हो जाता तो इसको ज़िबा करते। अब हम अगली हदीस देखते हैं। वभी क़ाल हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल
قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لتفاوتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب. تو یہاں پر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر 50 بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم فرمایا. یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. ابو داؤد رحمہ اللہ کے بعض حضرات نے فرا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کا سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوتا ہے مشرکین اس کو بتوں کے نام پر قربان کرتے اور پھر خود ہی کھا لیتے تھے اور اس کی کھال درخت پر لٹکا دیتے. اور عتیرہ اسے کہتے ہیں جس کو رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے. تو دیکھیے ہم نے آج عتیرہ اور فرا کے متعلق تفصیل سے پڑھا. ہم اگلا سبق جو ہے عقیقہ کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.